The comeback is always stronger than the setback. Hello guys, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. First of all, a very happy Diwali to each and every subscribers of this channel and the one who are going to watch this video. Very happy Diwali. I hope this Diwali brings a lot of joy, happiness, laughter, positivity and gives you the strength to fight the tough times in your life. आज जो सीरीज चल रही थी मेंटल हेल्थ वाली उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे. आज बस बात करेंगे प्योर इमोशंस. दिवाली 2022 से दिवाली 2023 में कितना कुछ बदल गया है. सो दिस वीडियो इज जस्ट टेकिंग अ थ्रो बैक. जर्नी को रिविजिट करते हैं कि एक साल में कितना कुछ बदल गया और कितना कुछ बदल सकता है आपके भी जीवन में, आपके भी जिंदगी में. जस्ट अ मैटर ऑफ 1 year and a lot can change in your life provided you are having the pure intentions, you are willing to work hard, you are ready to be patient, you are ready to have faith in the universe and you are ready to just not give up. Yes, if you can maintain all of these things, it just requires good 6 to 7 months or 10 months or 12 months and a lot can change in your life. और इसीलिए मैं ये रिकैप देना चाहता हूँ बिकॉज जस्ट वांट टू बी वेरी ग्रेटफुल. बिकॉज मुझे लगता है शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल कोई है ही नहीं कि यू कीप ऑन एक्नॉलेजिंग द फैक्ट. जो भी तुम्हारे साथ अच्छा होता है उस पर बात करनी चाहिए. एंड समटाइम इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी हमारे साथ अच्छा होता है बट हम समझ नहीं पाते. सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो की जर्नी के बारे में बात करेंगे. कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं वो भी सीखने की कोशिश करेंगे और कैसे थोड़ा सा समय कितना कुछ बदल सकता है उसके बारे में भी जानेंगे. 2000 years later. Oof, November 2022. I still remember it was my 25th Diwali. I didn't even choose to step out of my home because I was so caught up into the situation. The phase was so tough mentally. It was so challenging. It was like very dark around, and it all got to a feeling that बनते ना सीए इसके बाद करेंगे, सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे भी, नवरात्रि भी, दिवाली भी, सब कुछ. And mentally I was like almost finished. But one thing held me. I kept telling to myself कि ठीक है ये 25th दिवाली में तो हो सकता है शायद मैं घर से बाहर भी ना निकलूं, बट जब 26th दिवाली आएगी ना I'll be in a better position. जहां मैं आज हूं वहां से तो मैं बेटर पोजीशन पे पहुंच के दिखाऊंगा. एग्जाम तो खत्म हो चुके थे. दिसंबर में CS फाइनल एग्जाम आने थे 2022 में. 10 जनवरी को जब रिजल्ट आया CA बन गया मैं. तब मैं इंटरव्यू दे दिया. अप्रैल से जॉब स्टार्ट हो गई. कल ही 10 नवंबर को 7 महीने कंप्लीट हो गए एंड ऑल इज गोइंग वेल. ऑफ कोर्स अब डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस है, अब डिफरेंट सेट ऑफ पेन्स है, बट दिस हाउ लाइफ इज. यू मूव ऑन फ्रॉम one phase of life to another phase of life and you just have to see that are you progressing not only in terms of professionally but personally, mentally. Are you becoming a better person? Are you developing a better mindset? Are you having a better solution to your problems? And that is what is more important. Are you becoming mentally very stronger? And if I try to give answers to all these questions, I feel yes. mentally stronger बन रहे हैं, थोड़े wiser बन रहे हैं, problems को better तरीके से handle कर रहे हैं, attitude में एक calming सी vibe आ गई है, हर situation पे वैसे react नहीं करते, and it feels good. You have the degree, you are doing job, you are able to help your dad, you are able to tell to your dad you can take a back seat now. It's my turn now. It's my time to run the show, and you just have to, be and enjoy. And you have been working so hard. So yeah, it feels good. Of course, the toughness level तो बढ़ते ही चले जाते हैं because there is something which financially challenges you. There is something which will emotionally bother you. There is something which will take a lot of mental fatigue out of you because there will be after a point of time बहुत सारी चीजें simultaneously चलती रहती है लाइफ में. And of course, I will not say life is easy today, but yeah, it is very better. Last year जहाँ पे था वहाँ से जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, it feels very good. It feels very amazing. और पता है, like the biggest thing for which I am grateful about is ये जो strength. हम हमेशा ये सोच में पड़ जाते हैं कि जब हमारा टफ फेज चल रहा था कि क्या दिया. एंड आई केप रियलाइजिंग ओवर ऑल दिस इयर्स, स्पेशली इन द लास्ट 1 year, यार सबसे बड़ी चीज थी स्ट्रेंथ. कभी कभी कोई फेज ऐसे होते हैं जब हम शायद मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होते फॉर लाइक डेज, वीक्स, मंथ्स, शायद ईयर्स,
बट हम फिर भी उस फेज को सर्वाइव कर पाते हैं। ये एडिशनल स्ट्रेंथ आती कहाँ है? हमें तो हम लगता ही है ना अंदर से खत्म हो चुके हैं, बट फिर भी हम बढ़ते रहते हैं ना, जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, उस फेज से बाहर निकलते हैं, बढ़िया करते हैं, कम बैक करते हैं लाइफ में। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स अगर यूनिवर्स को देना चाहूंगा तो वो देना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द स्ट्रेंथ survive through my darkest phase, to survive through my lowest time. I remember it very nicely कि last year I was down and out. Absolutely. I didn't had like 1% of also mental strength in me. I was feeling like I'm losing it and all. शायद उस फेज में मुझे स्ट्रेंथ चाहिए थी कि बस मुझे अड़ा रहना है, बस मुझे वहां खड़े रहना है, बस मुझे यहाँ से गिव अप नहीं करना है, एंड थिंग्स विल चेंज एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। बट ये एडिशनल स्ट्रेंथ जो आती है वो यूनिवर्स ही तो देता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द स्ट्रेंथ विच यू प्रोवाइड, बिकॉज कोई फेजेस ऐसे होते हैं जहां से सर्वाइव कर जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड आई हैव सीन सच फेजेस इन माय लाइफ, स्पेशली व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम 26 November 2017, 6 years back. I never knew I'd be able to, leave a single day without my mom. But it's been 6 years. So, very, very grateful कि कभी कभी आप वो स्ट्रेंथ दे देते हो ना, उससे अलावा और कुछ ये भी नहीं होता है कितनी बार सिचुएशन को फाइट करने के लिए, सिचुएशन को फेस करने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। I always have felt very lucky that I have been one of the luckiest. I still feel that you consider me as your one of your favorite child and you keep blessing me in unexpected ways. And I have kept observing that if you're ready to, hang in there, if you're ready to not give up, if you're ready to be patient, कहीं ना कहीं से दरवाजे खोले जाते हैं। And I keep experiencing it. So, a very big thank you, universe, for always supporting me, for always giving me the strength, for giving me the strength to survive. बिकॉज कोई फेजेस आपने ऐसे डाल दिए जब ऐसा लगता था सर्वाइवल भी मुश्किल है। सो थैंक्स फॉर दैट। और जो भी अभी हसल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए मैसेज बहुत बड़ा, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा वक्त दो, इंटेंशंस प्योर रखो, काम करते रहो, डोंट गिव अप, जस्ट बी पेशेंट, हैव फेथ। बहुत बदलेगा और ऐसा बदलेगा ना तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आई एम लिविंग द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। आई एम फीलिंग वेरी गुड। द चैलेंजेस आर देयर बट आई एम एंजॉइंग इट। थैंक यू यूनिवर्स फॉर अलाउिंग मी टू टर्न द टेबल्स। नेक्स्ट दिवाली में और कुछ अलग करेंगे, कोई और नए कारनामे करेंगे। दिस इज हाउ लाइफ इज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। एंड विशिंग एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। जस्ट कीप गोइंग, हैव फेथ इन यूनिवर्स, थोड़ा सा पेशेंस, डोंट गिव अप एंड थिंग्स डेफिनेटली फॉल इन प्लेस। थोड़ा वक्त लग सकता है बट जितना ज़्यादा वक्त लगता है उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, किसी और के लिए नहीं। कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय एंड स्प्रेड गुड वाइब्स इन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली। थैंक यू।